Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss a poem, that is a poem number 4 from our Honeysuckle book, and the name of our poem is Beauty. Wow, beauty. As we say beauty, so many beautiful things come in front of us, isn't it? Yes, of course. So beauty is a thing that we can't describe or that we can describe, but the point of view or the point of describing will be different for each one. I will describe the beauty in different way, you will describe beauty in any other way. So what is beauty? ये beauty है क्या? Try to describe what beauty is. You just try to describe what is beauty, or list some of the things or the persons you think are beautiful. अब आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे जिसमें उन सब पर्सन्स के नेम लिखोगे और उन सब चीज़ों के नेम लिखोगे जो आपको ब्यूटीफुल लगती हैं. अब फिर देखते हैं वो लिस्ट, आपकी जो बनी हुई लिस्ट है वो मेरी लिस्ट के साथ मैच करती है या फिर आपकी लिस्ट आपके फ्रेंड की लिस्ट के साथ मैच करती है. कंपेयर करके देखना, नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसका जो नज़रिया है ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने का या चीज़ों को ब्यूटीफाई करने का वो एक अलग है, और आपका जो नज़रिया है वो अलग है. दैट मीन्स कुछ चीज़ें आपको सुंदर लगेंगी और कुछ चीज़ें आपके फ्रेंड को. फ्रेंड छोड़ो, चलो आप अपने भाई बहन से साथ ही कंपेयर करना, ठीक है? तो उनके साथ भी जब कंपेयर करोगे देन यू विल फाइंड दैट ही और शी लाइक्स some other things or you like some other things, or you see some other things as beautiful, or your brother or sister will see other things as beautiful. क्योंकि जो ब्यूटी होती है ना, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे फील किया जा सकता है. अब आप उस किसी चीज़ को कैसे फील करते हो? ऑब्वियसली जो आपकी लाइकिंग होगी, जो आपकी पसंद होगी, वही चीज़ें आपको ब्यूटीफुल लगेंगी. जो आपके भाई बहन की पसंद होगी उनको वो चीज़ें ब्यूटीफुल लगेंगी, और मेरी जो पसंद रहेगी मुझे वो चीज़ें ब्यूटीफुल लगेंगी. बट सो द थीम इज़ देयर कि एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल. हर चीज़ जो है वो ब्यूटीफुल है. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें ब्यूटी नहीं है. ये हो सकता है कि आपको एक चीज़ ब्यूटीफुल लग रही है तो आपके भाई बहन को कोई दूसरी चीज़ ब्यूटीफुल लग रही है और मुझे कोई अलग चीज़ ब्यूटीफुल लग रही है. बट everything is created by our God, and God is one. हर किसी का God एक है, and everything is created by Him only. So everything is beautiful. So let's discuss the poem about beauty. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So, see again, consider it again. What is beauty? In the first stanza, first sentence, you see beauty is seen. In the second stanza, notice the first sentence, beauty is heard. In the third stanza, notice the first line, beauty is in yourself. Now what is beauty? That means beauty is a thing that can be seen, that can be heard, that can be felt. So beauty is having different opinion, or beauty is having different aspects for everyone. That means we are having different aspects for beauty. Okay, so let's start. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. If a person is nature lover, जिसे नेचर बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है उसको प्रकृति, नेचुरल थिंग्स, तो वो हर नेचुरल थिंग में
ब्यूटी को रियलाइज कर सकता है, ब्यूटी को देख सकता है, जो कि शायद आप और मैं नहीं देख पाएंगे। वो एक पॉइंट देख सकेगा कि कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल है। जो एक नेचर लवर है, जिसको ग्रीनरी बहुत पसंद है, जिसको गार्डन्स बहुत पसंद है, ट्रीज बहुत पसंद है, जिसको बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, बर्ड्स की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी लगती हैं, दैट इज अ नेचर लवर। सो एक नेचर लवर के लिए ब्यूटी कहाँ पर है, या फिर कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर पॉइंट ही हो सकता है नेचर लवर है तो हम में से कोई भी नेचर लवर हो सकता है। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नेचर बहुत पसंद है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम पोइट्री लिख रहे हैं, है ना। सो वी शुड से रादर नेचर लवर। एक नेचर लवर के लिए ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। अगर कोई चाहे तो वो देख सकता है, सनलाइट में ब्यूटी देख सकता है। कहाँ देख सकता है, सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में। द ट्रीज में ब्यूटी नज़र आती है, बर्ड्स में ब्यूटी नज़र आती है। कॉर्न ग्रोइंग, दैट मीन्स जो खेत उगे होते हैं, फसलें उगी होती हैं, खेत लहरा रहे होते हैं, ग्रीन ग्रीन फील्ड्स। एंड यहाँ पर जो कॉर्न ग्रोइंग है, ये दैट मीन्स मक्का के फील्ड्स की बात की जा रही है। तो कॉर्न जो उगे हुए हैं उनमें ब्यूटी देखी जा सकती है, येलो येलो लुक देते हैं। एंड द पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और एक पर्सन उन लोगों में भी ब्यूटी देख सकता है जो लोग खेतों में अपना काम कर रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं फॉर देयर हार्वेस्ट। जिनकी फसल तैयार हो गई है, वो फसल की कटाई करके उनके पास रखी है और वो बहुत खुश हैं, उनकी खुशी में भी ब्यूटी देखी जा सकती है। सो ब्यूटी इज seen in the sunlight, trees, birds, corn growing, people working or dancing for their harvest, or anywhere. We can see beauty anywhere. हर जगह हम beauty को देख सकते हैं, but we must have the eyes, that kind of eyes or that aspect. वो attitude हमारा होना चाहिए, वो नज़रिया होना चाहिए, that vision should be there with us. वो विज़न होनी चाहिए हमारे पास कि हम उस ब्यूटी को देख सकें। हर चीज़ ब्यूटीफुल है, बट इस तरह की ब्यूटी को कोई कोई रियलाइज करेगा। कौन करेगा? जिसके पास वो विज़न है उस ब्यूटी को देखने की। दैट पर्सन हु इज़ द नेचर लवर, जिसको नेचर की हर चीज़ बहुत पसंद है। ही विल लाइक और ही विल सी दिस काइंड ऑफ ब्यूटी। सो नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Chanting क्या होता है? गाना। Anything in earnest, earnest means sincerity में, seriously कुछ गा रहा है कोई सिंगर, ठीक है। So beauty is not only seen but also it can be heard. ब्यूटी सिर्फ देखी ही नहीं जा सकती, इसे सुना भी जा सकता है। कई लोगों को रेनफॉल की, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब रेन पॉरिंग होती है तो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। कई लोगों को जो बहुत तेज़ हवा चलती है वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कई लोगों को नदियों की बहने की आवाज़ अच्छी लगती है, झरने के बहने की आवाज़ अच्छी लगती है, पानी को छलकने की आवाज़ अच्छी लगती है, बर्ड्स की चर्पिंग अच्छी लगती है। तो बर्ड्स की जो चर्पिंग है वो भी सुनी जाती है ना। सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो बर्ड्स चर्प कर रहे होते हैं। दैट चर्पिंग इज़ लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल। बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को वो आवाज़। हाइम्स की आवाज़ अच्छी लगती है, हिम्स की आवाज़ अच्छी लगती है। हिम्स क्या होते हैं? धार्मिक सॉन्ग्स जो होते हैं, है ना। हिम्स की आवाज़, HYMNS, तो हिम्स की आवाज़ अच्छी लगती है। विंड साइन, हवा के लहरा आने की, हवा चल रही है, हवा में कई बार, अब ध्यान से सुनना, जब साइलेंस होगा ना हर जगह, तो जब हवा चलती है साइलेंस में, तब उस हवा के चलने की जो आवाज़ होती है बहुत प्यारी आवाज़ होती है। रात को कई कुछ क्रीचर्स की आवाज़ आ रही होती है तो कईयों को वो बहुत अच्छी लगती है। वो जो क्रीचर्स रात को बोलते हैं, कुछ उनकी जो आवाज़ होती है, कईयों को तो वो म्यूज़िक टाइप फील होती है। सो ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट। ब्यूटी सुनी जा सकती है, सुंदरता को सुना भी जा सकता है इन द नाइट, जब रात के टाइम।
विंड साइंग, जब साइलेंस होता है एवरीवेयर और विंड की आवाज़ होती है वो सुन रहे होते हैं, तो दैट विंड की आवाज़ जो होती है, विंड की जहाँ साइंग मतलब विंड की आवाज़, हवा के बहने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़। रेन फॉलिंग, रेन ड्रॉप्स जब गिर रहे होते हैं तो वो आवाज़, वो जो हम आवाज़ सुनते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और कोई भी सिंगर जब कोई सीरियसली बहुत अच्छा सा कुछ गा रहा है सीरियस टोन में, तो वो आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। सो ब्यूटी इज़ इन योरसेल्फ। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि ब्यूटी को देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब देखते हैं ब्यूटी इज़ इन योरसेल्फ। ब्यूटी आपके अंदर है। कहाँ पर है? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. अब यहाँ पर ब्यूटी कौन देखेगा? ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। ब्यूटी तो आपके अंदर ही है। हम अपने अंदर की ब्यूटी को भी महसूस कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन भी महसूस कर सकता है। कोई पर्सन हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है, उसके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, जो उसके थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो अच्छे थॉट्स जब रिपीट होते हैं और भी अच्छे लगते हैं, और ये रिपीट होते रहते हैं हमारे ड्रीम्स में, हमारे काम में। हम किसी को कॉपी भी कर लेते हैं, किसी का कोई थॉट अच्छा लगा हम उसको फॉलो करते हैं। जब हमें बहुत अच्छा लगता है कुछ तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ इन आवर वर्क, इन आवर ड्रीम्स और इवन इन आवर रेस्ट। रेस्ट टाइम में दैट मीन्स अगर हम आराम कर रहे हैं तब भी हम कभी कभी बैठे सोचते हैं किसी पर्सन के बारे में कि यार उसने वो बात बड़ी अच्छी कही थी, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार से बोलता है, बहुत पोलाइटली बोलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी। अपने अंदर भी हम ब्यूटी को फील कर सकते हैं। ब्यूटी इज़ इन योरसेल्फ। ब्यूटी आपके अंदर ही है, आपके विचारों में है, आपके काम में है। डीड्स मीन्स एक्शंस, जो आप काम करते हो, ब्यूटी उसमें है। जब हम अच्छे काम करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी। ठीक है, तो गंदे काम करने वाले की तो कोई प्रेज नहीं करता। जब हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम की हर कोई प्रेज करता है, हर कोई प्रशंसा करता है। सो गुड डीड्स आर ऑल्सो इन देमसेल्व्स ब्यूटी और ब्यूटीफुल। जो गुड डीड्स होते हैं, हमारे अच्छे काम होते हैं, वो अपने आप में ही ब्यूटीफुल है। हमारे अच्छे विचार वो अपने आप में ही सुंदर हैं, दैट रिपीट देमसेल्व्स। और अगर हम अच्छे थॉट्स रखते हैं, हमारी नेचर अच्छी है, हम अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए और अच्छा बिहेव करते हैं, तो हम वही काम रिपीट करते हैं, हमारे वही थॉट्स रिपीट होते हैं, हमारे अच्छाई वाले ही थॉट्स रिपीट होते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छे हैं, तो हम ब्यूटीफुल हैं। हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स अच्छे हैं। और थॉट्स अच्छे हैं तो हम जो काम करेंगे, जो एक्शन करेंगे, वो भी अच्छा ही करेंगे। और जिस तरह से जो जो हम काम करते हैं वो रिपीट होते हैं। अब ये तो है नहीं हमने एक काम किया और फिर आराम से बैठ गए, फिर कोई काम करना ही नहीं है कभी। बट हम बार बार हर कोई भी काम होता है जो हम अगेन एंड अगेन करते हैं, ये नहीं कि एक ही दिन में, डेली रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं, तो वी रिपीट आवर गुड डीड्स, वी रिपीट आवर गुड एक्शंस, वी रिपीट आवर गुड थॉट्स। हम अपने उन अच्छे थॉट्स को रिपीट करते हैं। और अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे ड्रीम्स भी अच्छे होते हैं। अच्छे विचार रखते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हमारे मन में बुराई नहीं है किसी के लिए, तो हमारे सपने भी बहुत अच्छे होते हैं। इन योर वर्क, और जब हम काम करते हैं, जब आप काम करते हो, आपकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, तो आपके काम भी अच्छे होंगे, लोग आपकी प्रेज करते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब हम आराम कर रहे हैं तब भी हम अच्छा ही सोचते हैं। सो ऑल दिस इज ब्यूटी। सो वी कैन से ब्यूटी कैन बी रियलाइज्ड, beauty can be felt also. It is not only seen, not only heard, but also it can be felt. We can feel the beauty in ourselves, we can feel the beauty in others also. कहीं भी किसी के भी एक्शंस में हम ब्यूटी फील कर सकते हैं। सो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ट्रीज, birds, corn growing, people working or dancing for their harvest. So in the nature,
दैट इज़ वेरी कॉमन आस्पेक्ट कि हम ब्यूटी को नेचर में फाइंड करते हैं, हम ब्यूटी को नेचर में सर्च करते हैं. सो ब्यूटी कैन बी सीन इन द एवरी पार्ट ऑफ द नेचर, in every part of the nature. So beauty can be heard also in every part of the nature. हर part of the nature, हर creature की sound और हर we can say like जो natural चीज़ें हैं ये भी nature ही है. Rain falling, wind, night, day, early morning, birds, all are natural, all are created by God. So we can feel the beauty, we can hear the beauty there also, and if we see in ourselves or in other people, we can realize, we can feel the beauty in ourselves as well as in others, in happy thoughts, in happy actions, in good actions, and we repeat all these good deeds and good actions in our work, in our dreams, and also in our rest time. So this is a very good poem, and it is written by E.J. Shure. E.J. Shure. Okay. So I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.